जरा सोचो, दुनिया का हर एक इंसान एक ही जगह इकट्ठा होता है। Imagine for a moment, every single person on earth, all 8 billion of us, gathering in one place. Picture the largest crowd you've ever seen, but multiplied by millions. The sheer scale of it is mind-boggling. We would need a space larger than any city, perhaps even larger than some countries, to fit everyone. The logistics of such a gathering would be a marvel in itself. हम सब मिलकर उल्टी गिनती शुरू करते हैं. Now imagine the excitement building up as we all start a countdown together. The energy in the air would be electric, with everyone counting down in unison. The anticipation would be palpable, a moment of global unity unlike any other. फिर ठीक उसी समय हम सभी 8 अरब लोग एक साथ कूदते हैं. And then, at the exact same moment, all 8 billion of us jump together. The ground beneath us would momentarily feel the collective force of humanity. It would be a synchronized leap, a moment where everyone on Earth is in the air at the same time. क्या होगा? क्या धरती हिल जाएगी? What would happen? Would the earth shake? Would we feel a massive earthquake? The idea of billions of people jumping at once is intriguing and raises many questions about the potential impact on our planet. क्या हम धरती की परिक्रमा बदल देंगे? Could we change the Earth's orbit? The thought of altering the path of our planet around the sun is both fascinating and terrifying. It makes us wonder about the power we collectively hold. ये सोचने में मज़ेदार है और इससे हमें कुछ गजब की वैज्ञानिक बातें पता चलती हैं. This thought experiment is not just fun to imagine, but it also leads us to some incredible scientific insights. It makes us think about the forces at play and the scale of our planet in relation to us. सच तो ये है कि सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन हम सबके कूदने से धरती पर ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ेगा जैसा हम सोच रहे हैं. The truth is, while it sounds like a big deal, our collective jump wouldn't have the dramatic effect we might imagine. The Earth is incredibly massive and resilient. हालांकि हम इंसान खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं, लेकिन धरती के आगे हम बहुत छोटे हैं. Although we humans consider ourselves powerful, in the grand scheme of things, we are quite small compared to the Earth. हमारा सबका एक साथ कूदना ऐसा होगा जैसे कोई पिस्सू हाथी की पीठ पर कूद रहा हो. पिस्सू को शायद फर्क लगे, लेकिन हाथी को नहीं. Our collective jump would be akin to a flea jumping on an elephant's back. The flea might feel the impact, but the elephant wouldn't even notice. चलो, विज्ञान की मदद से समझते हैं कि ऐसा क्यों है. Let's delve into the science to understand why this is the case. The Earth's mass is approximately 5.97 x 10 circumflex 24 kilograms. In comparison, the combined mass of all humans is minuscule. Even if we all jumped at once, the force we generate would be negligible compared to the Earth's mass. The energy from our jump would dissipate quickly, absorbed by the ground and spread out over the vast surface area of the planet. Additionally, the Earth's gravitational pull is incredibly strong, keeping us firmly anchored. So while the idea of everyone jumping at once is a fun thought experiment, it serves as a reminder of the immense scale and power of our planet. It's a humbling realization that despite our numbers, we are but tiny specks on this vast Earth. धरती लगातार घूम रही है. यह एक अद्भुत और निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है. यह चक्कर हमें दिन और रात का अनुभव कराता है, जो हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसी घूमने की वजह से हमें दिन और रात होते हैं. सूरज का उगना और डूबना और आकाश में तारे दिखना सब इसी घूमने की वजह से होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े ग्रह का घूमना तो हमारी किसी हरकत से नहीं रुक सकता. यह सच है कि धरती का घूमना बहुत स्थिर और मजबूत है, लेकिन धरती पर चीजें जहां जहां हैं, उससे उसके घूमने पर असर पड़ता है. धरती की सतह पर होने वाली गतिविधियां, जैसे कि भारी निर्माण कार्य, बड़े पैमाने पर जलाशयों का निर्माण और यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर बर्फ का पिघलना, सब धरती के घूमने को प्रभावित कर सकते हैं. एक आइस स्केटर को कल्पना करो जो बर्फ पर घूम रहा है. जब वह अपनी बाहों को फैलाता है और फिर उन्हें अपने शरीर के पास लाता है, तो उसकी घूमने की गति बदल जाती है. जब वो अपनी बाहों को शरीर के पास लाता है, तो वो तेजी से घूमता है. यह एक सरल लेकिन प्रभावशाली उदाहरण है कि कैसे कोणीय संवेग का संरक्षण काम करता है. जब वो बाहों को फैलाता है, तो उसका घूमना धीमा हो जाता है. ये प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे धरती पर भार का पुनर्वितरण उसके घूमने की गति को प्रभावित कर सकता है. ऐसा कोणीय संवेग के संरक्षण के कारण होता है. कोणीय संवेग एक भौतिक गुण है जो किसी वस्तु की घूमने की गति और उसके द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है. यही सिद्धांत धरती पर भी लागू होता है. जब धरती पर बड़े पैमाने पर द्रव्यमान का पुनर्वितरण होता है,
तो उसका कोणीय संवेग बदल सकता है, जिससे उसकी घूमने की गति में परिवर्तन आ सकता है। अगर हम धरती पर भार के बंटवारे को बदल दें, तो हम सैद्धांतिक रूप से उसके घूमने की गति को थोड़ा बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बड़े पैमाने पर बर्फ पिघलती है और समुद्र में जाती है, तो यह द्रव्यमान का पुनर्वितरण होगा, जिससे धरती की घूमने की गति में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी तरह अगर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होते हैं, जैसे कि विशाल बांधों का निर्माण, तो यह भी धरती के घूमने को प्रभावित कर सकता है। यह सब हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारी गतिविधियां और प्राकृतिक घटनाएं धरती के घूमने पर प्रभाव डाल सकती हैं। धरती का घूमना एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह हमें दिन और रात का अनुभव कराती है और हमारे पर्यावरण और जलवायु को भी प्रभावित करती है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे हमारी गतिविधियां और प्राकृतिक घटनाएं इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। धरती का घूमना एक निरंतर और अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें यह याद दिलाती है कि हम एक बड़े और जटिल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए हमें अपनी धरती की देखभाल करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी गतिविधियां कैसे इस अद्भुत ग्रह को प्रभावित कर सकती हैं। आइस स्केटर की तरह धरती का घूमना भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसका भार कैसे बंटा हुआ है। जब ज्यादा भार केंद्र की ओर होता है तो उसका घूमना थोड़ा तेज हो जाता है। जब भार केंद्र से दूर होता है तो घूमना धीमा हो जाता है। अब वापस हमारे वैश्विक कूद पर आते हैं। जब 8 अरब लोग कूदते हैं तो हम असल में बहुत सारा भार ऊपर की ओर धरती के केंद्र से दूर ले जा रहे होते हैं। भार का यह पुनर्वितरण भले ही बहुत छोटा हो, सैद्धांतिक रूप से धरती के घूमने पर एक छोटा, लगभग नगण्य प्रभाव डाल सकता है। हम जानते हैं कि धरती पर बड़ी घटनाओं का असर उसके घूमने पर पड़ सकता है। धरती की घूर्णन गति और उसकी धुरी पर होने वाले बदलावों का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। उदाहरण के लिए, भूकंप से धरती के भार के बंटवारे में थोड़ा बदलाव आ सकता है। जब धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो यह ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट उत्पन्न करती है, जिससे धरती की सतह पर कंपन होता है। ये बदलाव बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इन्हें मापा गया है। वैज्ञानिक अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करके इन सूक्ष्म परिवर्तनों को रिकॉर्ड करते हैं। सेस्मोग्राफ जैसे उपकरण भूकंप की तीव्रता और उसके प्रभाव को मापने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा अनुमान है कि 2011 में जापान में आए भूकंप ने दिन की लंबाई को 1.8 माइक्रोसेकंड कम कर दिया था। यह बदलाव सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यह दर्शाता है कि भूकंप का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। हालांकि सबसे शक्तिशाली भूकंप भी धरती के विशाल आकार के आगे बौने हैं। धरती का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान लगभग 5.97 x 10 सर्कमफ्लेक्स 24 किलोग्राम है। इतनी विशाल संरचना पर भूकंप का प्रभाव सीमित ही होता है। इसे समझने के लिए जापान के भूकंप में निकली ऊर्जा लगभग 400 मिलियन टन TNT के बराबर थी। यह ऊर्जा बहुत अधिक है, लेकिन धरती के घूमने में शामिल ऊर्जा की तुलना में यह बहुत कम है। धरती की घूर्णन ऊर्जा इतनी विशाल है कि इसे प्रभावित करने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली घटनाओं की आवश्यकता होती है। हालांकि यह बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन धरती के घूमने में शामिल ऊर्जा की तुलना में यह बहुत कम है। धरती की घूर्णन ऊर्जा को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि धरती की घूर्णन गति और उसकी धुरी पर होने वाले बदलावों का अध्ययन कैसे किया जाता है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि धरती की घूर्णन गति में छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं, जो विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के कारण होते हैं। धरती की घूर्णन गति में बदलाव का एक और उदाहरण है जब बड़े पैमाने पर बर्फ पिघलती है या जमा होती है। यह भी धरती के भार के बंटवारे को प्रभावित करता है और उसकी घूर्णन गति में छोटे छोटे बदलाव ला सकता है। इसी तरह बड़े ज्वालामुखी विस्फोट भी धरती की घूर्णन गति को प्रभावित कर सकते हैं। धरती की घूर्णन गति में बदलाव का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों को अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों की आवश्यकता होती है। वे उपग्रहों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके धरती की घूर्णन गति और उसकी धुरी पर होने वाले बदलावों को मापते हैं। धरती की घूर्णन गति में बदलाव का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी धरती कैसे काम करती है और विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह अध्ययन हमें भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने में भी मदद कर सकता है। इस प्रकार
भूकंप और अन्य प्राकृतिक घटनाओं का धरती की घूर्णन गति पर प्रभाव एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी धरती कितनी जटिल और अद्भुत है।